اور امت کی رہنمائی کس طرح سے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مصحف کو دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھے۔ مصحف کا لفظ جو ہوتا ہے یہ عیب پر اطلاق اس کا نہیں ہوتا ہے۔ مصحف کا لفظ آف لائن جو قرآن کریم ہوتا ہے، جو بک ہوتا ہے، اس پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ مصحف کو دیکھ کر قرآن کریم پڑھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی دن یا رات ایسی گزرے جس میں میں اللہ کے کلام کو دیکھ کر نہ پڑھوں۔ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں روزانہ اللہ رب العالمین کے مصحف کو دیکھ کر کے پڑھا کروں۔ اب قرآن کریم کی اصل نسخے کو دیکھ کر پڑھنا، اس مصحف کو دیکھ کر پڑھنا کتنا بھاری ثواب ہے، ایسا صحابہ کیوں کہہ رہے ہیں، محدث ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں مصحف میں ہمیشہ دیکھ کر کے آپ لوگ تلاوت کرتے رہا کرو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کا نام سن کر کے دیگر مسالک کے لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، الفاظ بڑا سخت ہے لیکن گھبرائیے گا نہیں، مجھے بھی پتا ہے کب کیا بولنا ہے۔ جن کا نام سن کر کے بت کدے میں تہرام مچ جاتا ہے، جن کا نام سن کر کے باطل عقائد رکھنے والوں کے پیشاب اتر جایا کرتے ہیں، وہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب اللہ میں مسلسل دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل کو اور روح کو طاقت بخشے، جسم کی حفاظت کرے اور سکون اور خوشی فراہم کرے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس مصحف کو دیکھ کر پڑھنے سے الگ خوشی ملتی ہے، دل کو راحت ملتا ہے، الگ سکون اس کو محسوس ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مصحف میں دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا مصحف میں بنا دیکھے تلاوت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ مصحف میں دیکھنا اور غور و فکر کرنا ایک مطلوبہ عبادت ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ شریعت کا مطلوب ہے، یہ مقصود ہے کہ مسلمان یا عام انسان قرآن کے مصحف کو دیکھ کر تلاوت کرے، مصحف کے علاوہ کسی اور چیز میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، کیونکہ جبکہ موبائل فون ایسا نہیں ہے۔ علامہ عبید الجابری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اگر مسجد میں مصحف موجود ہو تو موبائل فون سے قرآن مجید کی تلاوت مناسب نہیں ہے، اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ مصحف کو اٹھانا اور اس میں دیکھنا عبادت ہے۔ مصحف میں دیکھنا اور مصحف کو اٹھانا یہ نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، جبکہ موبائل فون ایسا نہیں ہے۔ نیک اس سے مصاحف کو ترک کر لے اور اس سے بے رغبتی کا خطرہ ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے۔ جب سے یہ ایپ لانچ ہوا ہے قرآن کا، تب سے دیکھو مساجد میں جو مصاحف رکھے ہوئے، بھائی آدمی جمع کر کے جاتا ہے، امی کا انتقال ہو گیا، ابو کا انتقال ہو گیا، پیارے کا انتقال ہو گیا، مولانا صاحب کون سا کام کرے، کیا صدقہ کرے؟ ایسا ہے ساری مساجد میں 10 قرآن کے نسخے ڈال دیا گیا، نسخے الماریوں کی زینت بنے کے بنے رہ گئے، ویسے کے ویسے پڑے، اور جتنے مصلی ہیں تقریباً سارے کے سارے مصلی موبائل ایپ کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مصحف سے پڑھنا ترک کر دو گے
तो मुसहफ का तर्क करना लाजिम आएगा और कुरान करीम की जो इज्जत है, मुसहफ का जो एहतराम है, वो एहतराम तुम्हारे दिलों से खत्म हो जाएगा। अच्छा, आइए आखिरी आलिम दीन की बात पढ़ते बात को आगे बढ़ाते हैं। शेख अब्दुल्ला बिन सालेह अल फौजान रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, कुरान पाक की तिलावत के लिए मोबाइल फोन के बजाय मुसहफ को तरजीह देना चाहिए। और इसके चंद वजूहात कहना ये चाहते हैं, मेरे नजदीक जो मैं ये बात कह रहा हूं कि एक जानिब मुसहफ है, एक जानिब कुरान करीम की स्क्रीन पर कुरान है, मैं जो ये बात कह रहा हूं कि मुसहफ को तरजीह देना चाहिए, मोबाइल फोन में जो कुरान का आयत मौजूद है उसको तरजीह नहीं देना चाहिए। पढ़ने के लिए इस ऑफलाइन मुसहफ का इख्तियार करना चाहिए। इसकी चंद वजूहात हैं, चंद वजहें हैं। नंबर एक, मुसहफ की इज्जत, मुसहफ की हुर्मत मुसल्लम है, लाजिम है कि मुसहफ की इज्जत किया जाए और जो चीज मुहतरम हो उसका इख्तियार करना अफजल होता है। यही वजह है कि मोबाइल फोन को तो बैतुल खला में ले जाया जा सकता है, लेकिन मुसहफ को नहीं ले जाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं उलमा से जुड़कर जब रहोगे तब मसाइल की जानिब आपकी रहनुमाई होगी। मोबाइल को टॉयलेट में ले जाया जा सकता है क्योंकि ये सरापा कुरान नहीं है, लेकिन एक मुसहफ को थोड़ी सी अकल रखने वाला इंसान भी इस मुसहफ को लेकर टॉयलेट में नहीं जा सकता। इसीलिए मुसहफ का इख्तियार करना, मुसहफ से कुरान करीम तिलावत करना अफजल है और यही शरीयत का मतलब और मकसूद है। नंबर दो, मुसहफ असल है जबकि मोबाइल फोन फरा है। कुरान करीम का असल नुस्खा मुसहफ में नाजिल हुआ है, मोबाइल के ऐप में नाजिल नहीं हुआ है। इसीलिए इसका इख्तियार करना, और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब तक असल मौजूद हो फरअ की जानिब तवज्जो ना दिया जाए, जब तक असल मौजूद हो फरअ की जानिब तवज्जो ना दिया जाए, इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है। नंबर तीन, मुसहफ की शरई ताजीम जरूरी है, ये बरकत और खैर का बाइस। अल्लाह, कुरान करीम की ताजीम, ये जो नुस्खा है, जो मुसहफ है, ये बरकत का जरिया है, इसका छूना समझे ये खैर का जरिया है, क्योंकि ये कामिल मुकम्मल तौर से अल्लाह ताला के कलाम पर मबनी होता है, जबकि मोबाइल की ताजीम शरई जरूरत नहीं है। मोबाइल की ताजीम किया जाए ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी ताजीम किया जाए क्योंकि कुरान करीम मुकम्मल तौर से अल्लाह के कलाम पर मबनी है। समझ रहे, इसलिए इस मुसहफ को देखकर पढ़ना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पर ऐप के इस्तेमाल से इंसान को परहेज करना चाहिए अगर मुसहफ मौजूद है तो। मुसहफ सिर्फ कुरान के लिए मखसूस है, जबकि मोबाइल फोन में कुरान के अलावा दीगर चीजें भी मौजूद होती हैं। नंबर 5, मुसहफ से तिलावत इस्लाम की निशानियों में से है। अल्लाह अकबर। देखो, अब्दुल्ला बिन सालेह अल फौजान कहते हैं मुसहफ हाथ में लेकर के तिलावत करना ये इस्लाम की निशानी है, इस्लाम के शाइर में से है, जिसे फैलाना और आम करना चाहिए ताकि ये दीगर शाइर की तरह नुमाया और बाकी रहे। जैसे नमाज एक ईमान वाले की निशानी है, ऐसे ईमान वालों की निशानियां ये है, एक ईमान की निशानी ये है, इस्लाम की निशानी मुसहफ से तिलावत करना भी है। और जो ये रिवाज खत्म होते जा रहा है, इसको आम करना चाहिए, फैलाना चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में कुरान की अजमत, मुसहफ की अजमत बैठ सके। और जो शख्स मुसहफ उठाता है, गालिब गुमान यही होता है कि सिर्फ वो तिलावत करेगा, जबकि मोबाइल फोन उठाने वाले के बारे में यकीन नहीं किया जा सकता कि सिर्फ वो कुरान पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल से वो
पढ़ रहा है, मुमकिन है व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए, ट्विटर पर मैसेज आ जाए, किसी का फोन आ जाए, तो जो लगन जो दिल लगी है उसकी तिलावत करने में जो खुशू और खुशी और इखलास है, उस इखलास में खलल पड़ जाए। बहरकैफ ये उलमा के अक़वाल हैं और सहाबा के अक़वाल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। जरूरत है और हकीकत यही है। मैं तो हैरान हूं, बहुत सारी मसाजिद में जाकर आप देखें मसाहिफ रखे के रखे, उस पे गर्दो गुबार रखे हुए, तिलावत नहीं किया जा रहा है। मोबाइल फोन खोले, कुरान स्क्रीन पर ऑन किए, उसी से तिलावत करना शुरू कर दिए, जबकि मोबाइल के अलावा मस्जिद के अंदर मसाहिफ मौजूद है, कुरान का नुस्खा मौजूद है, उस पर गर्दो गुबार रखे हुए हैं। 2 साल पहले, 6 महीना पहले वो कुरान उसी जगह पर रखा हुआ था, आज उसी मकाम पर वो कुरान रखा हुआ है। जरा आप खुद पूछो अपने दिल से कि यकीनन हमारे लिए खैर किसमें है, भलाई किसमें है। ये उलमा के अक़वाल है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम हमें सही समझ अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, रोजा 3 अहम मकसद को कुरान करीम ने बयान किया है। 3 अहम मकसद। रोजेदार, अगर आपको देखना है कि आपका रोजा, गौर से सुनिएगा मेरे अजीज साथी, गौर से सुनिएगा। मुझे पता है शायद कि आप बोर हो जाएं, लेकिन बातें बड़ी उम्दा हैं, सुनने के लायक है, तवज्जो के लायक है। मैं आप लोगों की तवज्जो की भीख मांगता हूं, क्योंकि ये आपके ईमान की बात है, आपके इस्लाम की बात है, आपके दीन की बात है, आपके शायर की बात है, अल्लाह रसूल की बात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजेदारों के मकसद की 3 मकासद को वाज़ेह किया है। 3 मकासद को बुनियादी तौर पर बयान किया है। पहला जो मकसद है तक़वा शारी, दूसरा मकसद तकबीर इलाही और तीसरा मकसद शुक्र इलाही। यानी एक रोजेदार के अंदर कम से कम, एक रोजेदार के अंदर कम से कम ये 3 चीजें आनी ही चाहिए। फिर से सुनो, एक रोजेदार के अंदर कम से कम ये 3 चीजें आना लाजमी है। इससे कम एक रोजेदार के अंदर नहीं होनी चाहिए कोई चीज। पहली चीज तक़वा, दूसरा तकबीर इलाही, तीसरा शुक्र इलाही। तक़वा क्या है? तक़वा की मिसालें आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं एक अलग अंदाज से बयान कर देता हूं। देखिए, रावी हदीस सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम सहाबे कराम की जमात थी। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने लगे कि ऐ मेरे सहाबा, सुनो मेरी बात गौर से। मैं अपनी उम्मती में से कुछ लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तिहामा पहाड़ियों के बराबर चमकती हुई, धमकती हुई रोशन नेकियां लेकर के आएंगे, जिनकी नेकियों की गवाही आसमां भी देगा, जिनकी नेकियों की गवाही उनके आज़ाए बदनियां भी देंगे, जिनकी नेकियों की गवाही जमीन का जर्रा जर्रा देगा। ऐसे नेकोकार मुत्तकी परहेजगार लोग मेरी उम्मती में से आएंगे कयामत के दिन। लेकिन इन लोगों की नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हबा मंसूर, गर्दो गुबार बना देगा, कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, इतनी भारी बात। चमकती दमकती नेकियां तिहामा पहाड़ों की मानी। तिहामा पहाड़ वो पहाड़ है जो पहाड़ों में आला मिसाल है, जो खूबसूरत पहाड़ है, जिनकी ऊंचाई, जिनकी बुलंदी, जिनकी लंबाई, जिनकी चमक दमकती मिसाल दीगर पहाड़ों में नहीं। इसीलिए ऐसे पहाड़ की मिसाल अल्लाह के नबी ने यहां पर दिया। इतनी हैरान करने वाली बात, चमकती दमकती तिहामा पहाड़ों के बराबर नेकियां, जिस नेकी की गवाही आसमां भी दे, जमीन भी दे, आज़ाद बदनियां भी दे, लेकिन अल्लाह ताला उस नेकी को कबूल ना करे। सहाबा हैरान, कहने लगे सिफ़हुम लना वदल्लिहुम लना। अल्लाह के रसूल, ऐसे बदनसीब लोग कौन है जिनकी चमकदार नेकियां भी बर्बाद कर दी जाएंगी, जिनकी रोशन नेकियां अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इतनी साफ शफाफ रियाकारी से पाक नेकियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर देगा। ऐसे
ऐसे बदनसीब कौन है? सिफ़हुम लना वजल्लिहुम लना। ऐ प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बदनसीबों की जरा सिफतें बयान कर दो, कहीं ऐसा ना हो अनजाने में भी हम उन्हीं की तरह काम कर रहे हो, हमारी भी नेकियां बर्बाद हो जाए। अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो अनजाने में वही काम हम कर रहे हो, हमारी भी नेकियां हबा मंसूरा हो जाएं, रब कबूल ना करे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो दुनिया से अलग लोग नहीं, वो तुम्हारे जिल्दों से, तुम्हारी नस्लों से हैं, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, वो मुसलमान भाई हैं, कुरान की तिलावत करने वाले, रमजान के रोजे रखने वाले हैं, हज व क़याम करने वाले हैं, तरावीह की पाबंदी करने वाले हैं, सदका खैरात करने वाले हैं, फकीरों की मदद करने वाले हैं, मदारिस मसाजिद चलाने वाले हैं, फुकरा मसाकीन की मदद करने वाले हैं, बेसहारों का सहारा बनने वाले हैं, मजलूमों की हिमायत करने वाले हैं, जालिमों को रोकने वाले हैं, बेशुमार नेकियां करने वाले हैं, जिनकी तहज्जुद की मिसाल नहीं दी जा सकती है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सारी नेकियां इसलिए बर्बाद कर देगा क्योंकि जब वो तन्हाई में हुआ करते थे तो इंतहतु महारिम अल्लाह, जब वो अकेले होते थे, जब छुपे कमरे में होते थे, जब लोगों से छुपी निगाहों में होते थे, तो फिर वो अल्लाह के महारिम को तोड़ दिया करते थे, यानी छुप छुप कर वो गुनाह किया करते थे। अल्लाह, माशरे में है, समाज में है, आई एम समथिंग, आई हैव नॉट सेकंड, अरे भैया मेरे जैसा तो कोई नहीं, लेकिन जब तन्हाई में आते हैं, बंद कमरे में आते हैं, खुले मैदान में आते हैं, तारीकी रात में आते हैं, साथ में जब कोई नहीं होता तो ये गुनाह करने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज साथियों, में तफसीर नहीं करना चाहता, इस हदीस की तशरीह नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं तकवा लोगों के सामने गुनाहों से बच लिया जाए, मैं तकवा इसको नहीं कहता। तकवा की आला मिसाल तो मैं ये कहता हूं कि इंसान तन्हाई में हो, काली रात में हो, गुनाह करने का मौका मैसर हो, सारी हदें पार कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो गुनाहों से बच जाए, इसको तकवा कहा जाता है। तुम रोजा रखते हो, तुम रोजेदार अपने आप को कहते हो, तन्हाई में जाते हो, मोबाइल का यूजलेस इस्तेमाल करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो, गैर महरम बच्चियों से बातें करते हो, हमारी बहनें गैर महरम मर्दों से बातें करती हैं, फेसबुक ट्विटर पर रॉन्ग नंबर निकाल करके इधर उधर अपनी इज्जतें नीलाम करती है। तुम्हारा ये तकवा कौन सा है? भाई आ जाए स्क्रीन को ऑफ कर लेते हो, बाप आ जाए मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हो। ये तकवा नहीं, ये खरासत है, ये तकवा नहीं, ये रियाकारी है। ऐसे रोजेदारों को चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर तकवा पैदा करें। तकवा की आला मिसाल मैंने मेरे अजीज साथियों इसीलिए दिया है ताकि तुम तकवा को समझ सको। तकवा तो जाहिर में आंसू तो मजलिस में सबके गिरते हैं, तन्हाई में आंसू गिरा करके देखो, तब पता चलेगा तुम कितने मुत्तकी परहेजगार हो। चार लोगों के सामने हमारे भी आंसू गिर जाएंगे, चार लोगों के सामने आपकी भी रियाकारी के आंसू गिर जाएंगे, लेकिन तकवा के आंसू तन्हाई में गिरा करके देखो, अपने दिल को आवाज दो, ऐ मेरे दिल, अगर तू मुत्तकी है, अगर हकीकत में तू रोजेदार है, तो आज तन्हाई की रात है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई परिंदा नहीं फरमा सकता, मैं हूं, फरिश्ते हैं और अर्श वाला मालिक जमीन और आसमान का मालिक है। ऐ मेरे आंसू तू कहां चला गया? निकल जरा, तू निकल। अगर वो आंसू निकले फिर कहा जाएगा तुम मुत्तकी और परहेजगार। मेरे अजीज साथियों, तो रोजे का मकसद तकवा शारी है, मुत्तकी बनो, गुनाहों से बचने वाले बनो। हम कैसे मुसलमान हैं? जबान का गलत इस्तेमाल, रोजा रखकर गलत इस्तेमाल, खुद टोपी पहनते भी और टोपी पहनाते भी। ये कौन सा रोजा है? टोपी पहनते भी और टोपी पहनाते भी, ये कौन सा रोजा है? ये रोजा नहीं, ये दगाबाजी है। मेरा जी साथियों, रोजे का अव्वल मकसद तकवा है, तो तकवा शारी को अपनाओ, तकवा वाले बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, गुनाहों से बचने वाले बनो।
हाथों के गुनाह, आंखों के गुनाहों से, शर्मगाह के गुनाहों से, आज़ाए बदनिया से, हर चीज से बच जाओ, हर गुनाह से अपने आप को बरी कर लो, ताकि ये रमजान कहे अल्लाह ये बंदा अपने हवस को काबू में कर करके दिन भर भूखा रहा, अल्लाह को उसको जन्नत का मुस्तहिक। मेरा जी साथियों, रोजे का दूसरा मकसद तकबीर इलाही। तकबीर इलाही जानते हो? तस्बीह है, जिक्र इलाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का विर्द है। मेरा जी साथियों, हमारी जबान पर रोजे की हालत में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द। घर में हो तो, बाहर हो तो, तना हो तो, जमात में हो तो, कहीं भी हो आप 5 जगहों पर, हर मकाम पर रब को याद करते रहे, हर मकाम पर जिक्र इलाही करते रहे। मेरा जी साथियों, यहां पर मैं सिर्फ 2 कलिमा आपको बता देता हूं। एक कलिमा है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये छोटा सा कलिमा ना समझो, ये गूंगे भी इस कलिमे को अदा कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। लेकिन ये कलिमा इतना अजीम है कि अगर आदमी अपने सारे समंदरों के पानियों को गुनाहों से भर दे, अगर 7 समंदर के पानी के बराबर कोई बंदा गुनाह कर ले और एक दिन में अगर 100 बार इस कलिमे को पढ़ ले, तो 7 समंदर के गुनाहों पर यह कलमा भारी पड़ जाएगा। अल्लाह पर जिक्र इलाही करने वाले बनो। और एक कलमा और बताओ, बुखारी शरीफ की आखिरी रवायत, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलिमा है, बोलने में आसान, वजन करने में इंतहाई भारी। इतना वजनी कलिमा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, जबान पर इंतहाई आसान, और अल्लाह तो सारी दुआओं में सबसे ज्यादा महबूब दुआ है। अल्लाह कौन सी दुआ? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इतना अजीम कलमा, रब को महबूब। मेरे अजीज साथियों, इस तरह की दुआएं पढ़ते रहा करो, जिक्र करोगे तो अंदर इखलास पैदा होगा, रोजे का आनंद लेने का मजा अलग आएगा। तुम तो रोजा सोचते हो, सुबह 12 बजे 1 बजे उठो, जोहर पढ़ लो, फिर जाके बिजनेस में लग जाओ, शाम हो जाए आप बैठ करके 18 किस्म की अफ्तारियां कर लो, औरतों पर जुल्म कर लो। ये रोजा नहीं है। अब क्या कहो, जाने दो, अभी जुबान से कुछ निकल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपनी जबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इतना जुल्म ख़वातीन को तुमने क्या जाना? क्या खाना बनाने वाली 72 किस्म की इफ्तारियां तैयार करने वाली मशीनरी तुमने समझा है? कपड़ा धोने वाली मशीन समझा है? बेचारियों की इबादत करने का मौका नहीं। अरे वो जबरदस्ती अगर 5 वक्त नमाज ना पढ़े तो वो 2 बजे से तैयारी करती है, और जब तक तरावी का वक्त ना हो जाए बेचारियों को फुर्सत नहीं मिलता अल्लाह का नाम लेने को, उनको भी मौका दो। ये कम खाने का महीना, कम सोने का महीना, कम गुफ्तारी का महीना। बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बातें करने से क्या होगा? मौलवी साहब अपना गला फाड़ लेंगे, रोजा लड़खड़ा जाएगा, और हम सामने वही होगा, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अरे 20 दिन गुजर गए, अपने नफ्स का मुहासबा करो, आने वाले 10 दिनों में तुमने क्या करना है, और गुजरे हुए 20 दिनों में तुमने कौन सा काम किया है, कितनी नेकियां की हैं। हमारे नबी का सुन्नत क्या है, हमारे नबी का उस्वा क्या है, सहाबा इस महीने को किस तरह गुजारते थे, मुहद्दिसीन इस मुबारक महीने को किस तरह से गुजारते थे। हम आज के मुसलमान हैं, उन्हीं सहाबा के पैरोकार, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, उसी रब से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं जानशीनों से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं औलिया से मोहब्बत करने वाले, वो लोग किस तरह से रोजा गुजारते थे, हम और आप हैं किस तरह से रोजा गुजारते। ये मुबारक महीना है, ये बदनसीब मुसलमान है, एक बार भी कुरान की तिलावत मुकम्मल नहीं कर पा रहा है। अल्लाह सोचता है तरावी में कुरान सुन लो, एक अल्लाह के कसम इतने मारे जाओगे ना, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, इतना मारे जाओगे। कुरान की ये तौहीन अर्श वाले को बर्दाश्त नहीं है। अर्श के दिन है, काश अल्लाह ताला कोई यहाँ पे दिखा दे कोई मौजूदा कि मुसलमानों का भेजा खुल जाए। सोचते हैं तरावी में चिल्ला लो, तरावी में पढ़ा लो कुरान खबर। ये कौन सा आइडियल है, ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा तरीका है, ये कहां से लाए? तुम्हें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है? अरे पढ़ो,
तरावी में पूरा पढ़ो, पूरा 4 बार खत्म करो। इसका इनकार ये सनातनी नहीं करता है। मैं इनकार इस बात का करता हूं कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा उसूल है। तरावी में पूरा कुरान खत्म किया जाए और तुम्हें 10 पारा भी देख कर पढ़ने की तौफीक ना मिले, ये कौन सी तुम्हारी तकवा है? कौन से तुम बंदे हो? कौन से मुसलमान? खुद पढ़ो। ये रमजान कुरान का महीना है। अल्लाह अकबर। कुरान के महीने में जब कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी तो फिर साल के जो गैर कुरान वाला महीना है उसमें अल्लाह ताला कैसे तौफीक देगा? अल्लाह। मेरे अजीज साथियों, दिल को आवाज दो, दिल को पुकारो, सोचो, दिमाग पर जोर दो, हम किस महीने से गुजर रहे। एक दिन था रमजान आएगा, रमजान आएगा, रमजान आए, रमजान आ गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 3 अशरे अव्वल गया, दूसरा जाने को 4-5 घंटा और बचा है, तीसरा अशरा इंशाअल्लाह बादल मगरिब शुरू हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। मेरे अजीज साथियों, दिल को आवाज। अच्छा, तो रोजे के 3 मकासद हैं। तकवा शिआरी, तकबीर इलाही। तकवा का माना मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तकबीर जिक्र इलाही, दुआ अस्कार इसमें आता है। शुक्र इलाही, अल्लाह अकबर, ये चीज समझिएगा मेरे अजीज साथियों। अरे बेरोजादारों, भैंसो सुधर जाओ। ये मोटे मोटे जिस्म लेकर के तुम्हारे जिस्म, ये बॉडी बाड़ी जिस तरह से सूद खाने वाले मोटे तो हो जाते हैं लेकिन उनके बदन में ताकत नहीं होती है, ऐसे तुम्हारे बदन की ताकत अल्लाह ने खुद यही छीन ली। मोटे तो हो लेकिन रोजा रखने की तौफीक अल्लाह ने छीन ली है। इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है? तुमसे पतला आदमी जो सांस भी नहीं ले सकता बराबर, वो भी रोजा रखता है, लेकिन पड़ोसी है, मोटा है, तगड़ा है, रोजा रखने की तौफीक अल्लाह ने उसको नहीं दी है। ऐ रोजादारों, शुक्र इलाही, यानी जिनको अल्लाह ने रोजा रखने की तौफीक दिया है, जिनको अल्लाह ने इस मुबारक महीने में गुनाहों से बचने की तौफीक दिया है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया इस महीने में सखावत करते हैं, गरीबों की मदद करते, यतीमों का ख्याल करते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया रोजादारों को इफ्तारी कराते हैं, जिनका ये महीना नेकियों में गुजर रहा है, जो बुराइयों से इस महीने में बचे हुए हैं, जिनका महीना तिलावत करने में गुजर रहा है, अल्लाह ताला उनसे कह रहा, मेरे बंदो, इस मुबारक महीने में इन नेकियों पर तुम मेरा शुक्र अदा करो। क्योंकि तुम खुद अपने दोस्त को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, मैंने तुम्हें तो तौफीक दे दिया लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को इस मुबारक महीने में भी नेकी करने की तौफीक नहीं दिया है। तो ये मुबारक महीना शुक्र करने का, हमेशा शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। मेरा अजीज साथियों, बातें बहुत सारी हो गई, टाइम तकरीबन मुकम्मल हो गया, बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कल से आखिरी अशरा जो एतकाफ का अशरा होता है, सबसे बड़ी इबादत आखिरी अशरे में एतकाफ की इबादत है। एतकाफ हमें करना चाहिए, खासतौर से नौजवानों को एतकाफ करने की पाबंदी करनी चाहिए। और इतने नौजवान तैयार हो जाएं हर मसाजिद में। अब मैं तो यहाँ मसाजिद तो बहुत जानता हूँ, लेकिन जहां खालिस किताब और सुन्नत की बात हो, जहां सिर्फ किताब और सुन्नत की बात हो, वो सिर्फ मैं 3 मस्जिद जानता हूं। तो 3 मसाजिद में इतने नौजवान तैयार हो जाएं कि जिम्मेदारान को सोचना पड़े अगले साल काश उससे ज्यादा हम इंतजाम करें। ये पब्लिक को भी मैं गैरत दिला रहा हूं और जिम्मेदारान को भी मैं तैयार कर रहा हूं। लेकिन जिम्मेदारान की क्या गलती है? आप तैयार ही नहीं होते तो रूम बनवा कर वो क्या करेंगे? जिन्नात वहां रहे, परिंदे चरिंदे रहे, क्या फायदा बनवाने से? तो आप लोग इतना तैयार हो जाओ कि जिम्मेदारान सोचें कि हमें अपने नौजवानों के लिए तैयार करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए। मेरा जी साथियों, आखिरी अशरा है। अल्लाह अकबर, कितनी बातें, बस मैं इतना अलग बयान करूंगा। आपने एतकाफ की फजीलत सुनी है, लेकिन मैं अलग तरीके से बयान करने की कोशिश करता हूं। एतकाफ करने वाले को कितना फायदा मिलता है, देखो, फायदा सुनते हुए जाओ। एक एतकाफ करने वाला पूरा अशरा दुनिया के सबसे मुकद्दस जगहों पर 10 दिन गुजार देता है। सबसे मुकद्दस जगह कौन सी है? मस्जिद है। साल के किसी और महीने में किसी भी बंदे का
چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مؤذن ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا 10 دن نہیں 1 دن بھی مکمل مسجد میں نہیں گزرتا، لیکن اللہ اعتکاف کرنے والوں پر یہ رحم کرتا ہے کہ انہیں سال میں 10 دن ایسا دیتا ہے کہ 10 دن وہ مسلسل پاک جگہ پر